Yes, students, thanks to all. Previous class I discussed very important topic. That topic was party and operating system. Then I discussed a structure of an operating system. Then I discussed types of an operating system. And also I discussed what are the main functions of an operating system. So today we are going to discuss memory management, very important, because in computer architecture memory is very important, like cache memory, main memory, secondary memory, and even operating system support. In operating system supports, memory management scheme is very important for exam points of view. So today I am going to discuss party memory management. See what I told previous class. Operating system, the simple definition I have given. Operating system is a software. Operating system is a set of program, or operating system is a system software which interface between user and hardware. Very simple. Then some other definitions also I have given, like the ANSI defines ANSI. Who defines? ANSI. ANSI. The ANSI defines an operating system as software which controls the program execution and which may provides like scheduling, debugging, accounting, memory management, data processing, some selective services. So in that way we define operating systems. Then I saw a small structure. Then I saw type of an operating system. Now we have to start memory management. Very important for all students. Those are in BCA first semester or BCA third semester. For them, for both of them, very important. Even it is very important for technical students. Memory management. See, memory management. There are different approaches to manage memory. There are different approaches are applied at different situations also, we can say. बहुत सारा अप्रोच है मेमोरी को मैनेज करने का उस सिचुएशन के आधार पे, तो कैसे मेमोरी को मैनेज करेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हार्डवेयर का होता है कि वो कैसे मेमोरी को मैनेज करता है। जब प्रोसेस करंटली बीइंग होता है एट ए टाइम, हार्डवेयर कैसे उसको जो है कौन सा मेमोरी पार्ट को, कौन सा मेमोरी एरिया को सिलेक्ट करता है, यूजर्स के लिए वो किस तरह से मेमोरी अवेलेबल कराता है। तो हार्डवेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर मैनेजिंग मेमोरीज। सभी मेमोरी मैनेजमेंट जो है कैसे वो यूटिलाइज करता है, अप्रोच कर सकता है, स्कीम कर सकता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये मेनली दो ढंग से हम लोग लेते हैं। यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट, यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट, और दूसरा मेरा है मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट। बहुत सिंपल। यही जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डीपली पढ़ेंगे उसमें जो है मेमोरी मैनेजमेंट को हम दो भाग में लेकर चलेंगे, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल वे में आपको बता रहे हैं। सिंपल
बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि बेसिक हम स्टार्ट किए हुए हैं, उस बेसिक के आधार पे ये हम जो है मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली हम बता रहे हैं, ठीक है। और वही अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मेन एरिया जब ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे तब वहां पर मेमोरी को हम दो तरह से मैनेज करेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन और दूसरा नॉन कंटिन्यूअस। उस आधार पे हम जो है मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है हम देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं क्या मेमोरी मैनेजमेंट, मेनली हम क्या बताया यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा क्या बताया मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। क्या बताया देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू मैनेज मेमोरी, these different approaches are effective under different situations. Hardware play an important role to manage memory. That hardware also play an important role. Which part of memory area are used to manage memory, or it provides users a facility to manage the memory or allocate the memory. That is, we can say the memory allocation and deallocations. Memory allocations and deallocations. तो मैंने देखा मेमोरी मैनेजमेंट में दो तरह से हमने लिया एकदम सिंपल वे में, एक हो गया यूनि प्रोग्रामिंग और दूसरा हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग। यूनि प्रोग्रामिंग में क्या करता है, एक स्मॉल फिगर हम बनाते हैं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूनि प्रोग्रामिंग में क्या होता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज एक पार्ट में रहेगा, चाहे वो टॉप में रहे या बॉटम में रहे। मान लीजिए ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा पार्ट किसके लिए है, मान लीजिए यूजर प्रोसेस के लिए रखा। तीसरा फ्री और अनयूज्ड एरिया कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फ्री और अनयूज्ड एरिया, फ्री और अनयूज्ड एरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनि प्रोग्रामिंग में एक सिंगल प्रोग्राम के लिए जितने भी रिसोर्सेस हैं सब एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहता है जब तक कि वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता है। इन दिस यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी में क्या बताया है, टोटल रिसोर्स में क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, टोटल रिसोर्सेस आर अवेलेबल फॉर ए सिंगल प्रोग्राम अंटिल जब तक कि वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता। दैट इज यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी। इसमें क्या देखे, ये फिगर बनाए, टॉप पे या बॉटम पे कौन रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जो किसको मेमोरी को मैनेज करना है। दूसरा एरिया क्या लिए, यूजर प्रोसेस के लिए। तीसरा एरिया क्या लिए, फ्री और अनयूज्ड एरिया कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या देखा, यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक। इन यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट ए प्रोग्राम कैन बी यूज्ड टू मैनेज बाय यूजिंग ऑल द रिसोर्सेस until or even that task had to be complete. जब तक कि वो टास्क को कंप्लीट नहीं करता तब तक वो रिसोर्स उसके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। दूसरा मैं बताया, दूसरा मेरा क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल, एकदम बेसिक, इससे नीचे अब नहीं हो सकता, बेसिक थिंग्स। दूसरा क्या बताया, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी। इससे दूसरा क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट में क्या देखेंगे हम लोग, इसको भी दो ढंग से देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट, इसको भी हम जो है दो भाग में लेते थे। एक हो गया मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। देखिए कौन सा पहला हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विथ फिक्स्ड विथ क्या ले रहे हैं आप, फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन, ठीक है। और दूसरा क्या है मेरा, क्या है यहां देखिए, फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन। दूसरा क्या लिए, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विथ
वहां फिक्स लिए हुआ, यहाँ क्या लिया, वेरिएबल, वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन। अब दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है। मेमोरी पार्टीशन, फिक्स में क्या होता है, मेमोरी का साइज फिक्स कर देता है। फिक्स पार्टीशन में क्या होता है, मेमोरी का साइज फिक्स कर देता है, लेकिन प्रोसेस किसी चीज का फिक्स नहीं है, प्रोसेस फिक्स नहीं है। उस केस में क्या होता है, बाय द वे, कभी प्रोसेस ओवरफ्लो कर गया, कभी प्रोसेस अंडरफ्लो कर गया। इस कारण में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मेमोरी जो है फुल्ली मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो कैसे, वो हम लोग एक फिगर बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कैसे मेमोरी को पार्टीशन में बांटा गया है। तब हम जो है यही जो फुल्ली मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ फिक्स मेमोरी पार्टीशन में, फिर दूसरा अप्रोच को यूज किया गया जिसका नाम दिया गया वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन, जिसमें हम दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है, कैसे इसमें प्रॉब्लम्स आया। उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मेमोरी मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विद वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन का यूज किया गया। तो अभी हम फर्स्ट वन देखेंगे, क्या है पहला, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट। पहला क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विद फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन। देखिए वेरी सिंपल, देखिए इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट वन दिया, क्या पहला क्या है, पहला मेमोरी मैनेज मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट ना, या मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट with फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन। क्या बताया ना, फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन। इसमें सबसे ज्यादा अटेंशन किस पे देना, फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन। किस पे देना, फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन। देखिए क्या, ठीक है, मैं बताया एक फिगर जस्ट बना रहा, देखिए जस्ट लीजिए, मेमोरी लीजिए, क्या है मेमोरी, इसको पार्टीशन कर दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज में बोला या तो टॉप में रहेगा या बॉटम में रहेगा, या तो टॉप में या बॉटम में रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज एक एरिया होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलिए इसको पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन 1 मिनट, पार्टीशन 1, उसी तरह से पार्टीशन 2, उसी तरह से पार्टीशन 3, उसके बाद पार्टीशन n। क्या देख रहे हैं, यूजर एरिया को n नंबर ऑफ पार्टीशन में बांट दिया गया। यूजर एरिया क्या n नंबर ऑफ पार्टीशन में बांट दिया गया। ये देखिए, ये फिक्स्ड हो गया। लिख सकते हैं आप यूजर एरिया डिवाइडेड इनटू n क्या है, नंबर ऑफ पार्टीशन, n डिवाइडेड इनटू n फिक्स्ड पार्टीशन, वेरी सिंपल। यूजर एरिया डिवाइडेड इनटू n फिक्स्ड पार्टीशन में देख रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि प्रोसेस अराइव हुआ, प्रोसेस आया, प्रोसेस क्या हुआ, या तो मान लीजिए आप मेमोरी ले लिए हैं 20 का, क्या ले लिए मेमोरी, मान लीजिए मेमोरी लिए 20 का, A0 A1, ठीक है, डॉट 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 डॉट। आप चले जाइए, 1 मिनट फिर से, once again, just I am giving you example, just you say we taken memory कितना के लिए, 20 का लिए सपोज। क्या हुआ, मेमोरी का आप जान रहे हैं इस तरह से लोकेशन वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए 0 हुआ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 3 हो गया, ठीक है। तो आपका मेमोरी जो है जब प्रोसेस आया तो मान लीजिए कि यहीं तक मेमोरी को कवर किया, मेमोरी कहां तक कवर किया, रिमाइनिंग जो हुआ वो क्या हुआ, उसका यूज हुआ नहीं हुआ, वो क्या चला गया, वेस्टेज में चला गया। कभी कभी ऐसा हुआ साइज आपकी है 20, लेकिन प्रोसेस आपका क्या जा रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, 20 से भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि प्रोसेस फिक्स नहीं होता, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं प्रोसेस फिक्स नहीं है, पार्टीशन फिक्स है, मेमोरी का साइज फिक्स है। अगर वो ओवरफ्लो में जा रहा है उस वक्त भी आपका मेमोरी फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं है, प्रोसेस मान लीजिए बाहर जा रहा है, तब क्या ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों केस में क्या देंगे, या तो मेमोरी कभी जो है अंडर में ही रह जाता है और कभी क्या हो जाता है, ओवरफ्लो कर जा रहा है। दोनों केस में क्या देख रहे हैं, मेमोरी का वेस्टेज जा रहा है। इसमें एक अप्रोक्सीमेटली माना गया कि 50% मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो रहा और 50% क्या जा रहा है, 50% क्या जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है। क्या माना गया, 50% मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और 50% मेरा वेस्टेज जा रहा है। इस कारण दूसरा जो प्रोसेस बताया मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट में इसका यूज किया गया, फिक्स के जगह पे वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन का यूज किया गया। हम देखते हैं उसमें क्या होता है। इसमें समझिए क्या कॉन्सेप्ट था इसका, क्या था, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या तो टॉप या बॉटम रहता, उसके बाद मेमोरी एरिया को जो यूजर्स का एरिया था उसको फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन में बांट दिया जाता, साइज फिक्स हो गया। इसमें कहा है प्रोसेस फिक्स नहीं है, जब साइज फिक्स हो गया, जब प्रोसेस होने लगा, या तो कभी जो है अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है या तो कभी क्या देख रहा है, ओवरफ्लो कर जा रहा है। दोनों केस में क्या माना गया कि मेमोरी का 50% मेमोरी का यूटिलाइजेशन माना गया, ऐसा 50% मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और 50% क्या जा रहा है, वेस्टेज जा रहा है। इस केस में इससे बेटर और इसको बेटर ढंग से यूटिलाइज करने के लिए दूसरा प्रोसेस को माना गया, जो कि है मेरा मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट भी वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन। देखिए उसमें क्या होता है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंस मेमोरी मैनेजमेंट, यही हम पढ़ेंगे उसमें कैसे स्टैटिक और डायनामिक में मेमोरी का मैनेज किया गया। उसी में पढ़ेंगे पेजिंग, क्या बताए मेमोरी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे तो उसमें जो है दो ढंग से पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस मेमोरी और दूसरा नॉन कंटिन्यूअस। उसी में पढ़ेंगे स्टैटिक डायनामिक, दूसरे में पढ़ेंगे पेज एंड सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंस हो जाएगा और एक सिंगल पेपर्स के लिए। लेकिन यहाँ एक बेसिक ढंग से हमको समझाना पड़ रहा है, इसलिए बेसिक थिंग्स के लिए मैंने मेमोरी मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंस है, बार बार एग्जाम में ये पूछता है, इसके लिए मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि मेमोरी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। दूसरा मेरा था मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट विथ वेरिएबल, इसके जगह क्या लिया, वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन, मेमोरी पार्टीशन। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताया, या तो टॉप या बॉटम में रहेगा, एक एरिया, ठीक है। पूरा एरिया किसके लिए छोड़ दिया, यूजर्स के लिए, यूजर एरिया। सपोज मान लीजिए प्रोसेस P1 एराइज, प्रोसेस P1 आता है तो क्या होगा, पूरा एरिया किसके लिए, यूजर्स के लिए। एक ही प्रोडक्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोसेस P1 आया, क्या होगा, इसमें देखिए मेमोरी है, एक पार्ट में ऑलवेज क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। प्रोसेस P1 को जितना स्पेस चाहिए वो ले लेगा, फिर बचा दो किसके लिए, यूजर्स के लिए। दूसरा प्रोसेस यूजर एरिया। सपोज उसी तरह से मान लीजिए प्रोसेस P2 अराइव्स, फिर क्या हो गया, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम
टॉप में प्रोसेस P1 जितना स्पेस था लेना ले लिया था, फिर प्रोसेस P2 को जितना स्पेस लेना होगा वो ले लेगा। फिर क्या किया ये यूजर एरिया, फिर क्या हो गया यूजर एरिया। फिर जो इस तरह से प्रोसेस का जब प्रोसेस आएगा और जितना उसको स्पेस लेना रहेगा वो लेगा। इस तरह से मेमोरी का क्या किया गया यूटिलाइजेशन किया गया। इसमें क्या देखा गया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द मेमोरी का क्या हुआ यूटिलाइजेशन हुआ। किसके थ्रू बाय वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन। तो आप समझ गए कि फिक्स साइज में क्या हुआ, मेमोरी का साइज फिक्स करने के कारण फुल्ली मेमोरी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उसमें एक एवरेज माना गया 50% मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो रहा है और 50% मेरा क्या जा रहा है वेस्टेज जा रहा है। उसको दूर करने के लिए, उसी ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए दूसरा अप्रोच का यूज किया गया जो कि था मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विद वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन। इसमें क्या हुआ कि टॉप एक पार्ट मेमोरी सबों में देखे हमने, एक पार्ट पे टॉप या बॉटम में ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरा एरिया किसके लिए है यूजर्स के लिए है। प्रोसेस का अराइवल्स हुआ, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद प्रोसेस मान लीजिए P1 आया, जितना भी स्पेस उसको लेना था उस स्पेस को यूज लिया, बचा जो फिर स्पेस फिर अगले प्रोसेस के लिए। इस तरह से ये कंटिन्यू जो है प्रोसेस का अराइवल हुआ और मेमोरी का उस तरह से यूटिलाइजेशन हुआ। ठीक है, ये हम देखें सिंपल प्रोसेस, सिंपल बेसिक थिंग्स में पढ़े मेमोरी मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिफाइन किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसका स्ट्रक्चर बनाया था, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे उसको फिर डिफाइन किया था। उसके बाद मैं इसमें बताया आपको टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स का क्या कौन कौन सा है, उसमें मैं फिर उसके बाद टाइप्स के बाद मैं बताया था आपको कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंस मैं बोला था प्रीवियस क्लास में भी, मेमोरी मैनेजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू very important for technical students also. It is very important even you are going for programming or preparing a program, that for them also if you know how to manage memory then also it is very important, so that we started basic things what is memory management. तो मैं बताया कि बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट मेथड, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट स्कीम्स का यूज करते हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए। इसमें सबसे बड़ा रोल्स किसका होता है हार्डवेयर का, जो कि वो कौन सा पार्ट मेमोरी अवेलेबल है और कैसे वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट करता है मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन कराने के लिए यूजर्स के प्रोसेस के लिए। तो उसमें हमने देखे कि मेमोरी को मैनेज करने का दो स्कीम्स लिया, एक मैंने लिया यूनि प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट और दूसरा मैंने लिया मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट। वेरी गुड। तो यूनि प्रोग्रामिंग में क्या देखा, यूनि प्रोग्रामिंग में टॉप या बॉटम में एक एरिया ऑलवेज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रहता है और रेस्ट ऑफ द एरिया यूजर प्रोसेस हुआ या फ्री और अनयूज्ड एरिया वी कैन से। क्या देखे उसमें जब तक वो प्रोसेस जब किसी टास्क को परफॉर्म करता है उस टास्क के लिए उस जॉब के लिए पूरा का पूरा रिसोर्स अवेलेबल रहता है जब तक कि वो टास्क और वो जॉब कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में फिर क्या देखे हम मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट में हम दो मेथड्स पढ़े, एक पढ़ी यूनि प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम विद फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन और दूसरा मैंने पढ़ा मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विद वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन। तो मैंने क्या देखा मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विद फिक्स्ड मेमोरी पार्टीशन में क्या देखा मैं कि मेमोरी का पार्टीशन फिक्स्ड कर देता है। टॉप या बॉटम में एक एरिया में कौन रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और रेस्ट ऑफ द एरिया को एक फिक्स साइज में बांट देता है। जब फिक्स साइज में उसको बांट दिया, फिक्स साइज कर दिया उसका, तो प्रोसेस किसी चीज का फिक्स नहीं होता। एट दैट टाइम क्या होता है मेमोरी का अंडर यूटिलाइजेशन वी कैन से और ओवरफ्लो होने के कारण मेमोरी का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इस केस में क्या माना गया एक अप्रोक्सीमेट लिया गया कि 50% मेमोरी का यूटिलाइजेशन हुआ और 50% मेमोरी क्या चला गया वेस्टेज चला गया। इन दैट केस क्या मैंने देखा उस ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए
दूसरा मेथड्स का यूज किया गया जो कि नाम दिया गया मल्टी प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट विद वेरिएबल मेमोरी पार्टीशन। इन दैट व्हाट वी सॉ, पहले तो इसमें लिए ऑपरेटिंग सिस्टम टॉप या बॉटम पे रहता है, पूरा का पूरा एरिया यूजर्स के लिए रहता है। जैसे प्रोसेस अराइव्स होता है, मेमोरी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद प्रोसेस P1 को जितना स्पेस लेना रहता है वो ले लेता है, बचा जो स्पेस वो अगले प्रोसेस के लिए। इस तरह से प्रोसेस का अराइवल्स होता है और मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता है। इस ढंग से मेमोरी का मैनेज किया जाता है। जैसे बेसिक थिंग्स, दीज आर बेसिक थिंग्स। अब उसके बाद इसके बाद मेरा जो कॉन्सेप्ट जाएगा मैं बताया, इसमें भी मैं बताऊंगा कैसे कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, कैसे मेमोरी का मैनेजमेंट, कैसे मेमोरी का मैनेज किया गया बाय यूजिंग कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का या मेमोरी मैनेजमेंट का स्कीम का यूज किया गया। सो थैंक्स टू ऑल, बी सेफ, बी सेफ and go for better preparation, do better, live a tension free, always think positive because you are going to be prepared for your exam. So I hope you are concentrate on your topic and you must have to follow systematic way and step by step so that you will get better marks while writing in exams. So thanks, very thanks. God all of you. Okay, be safe. Thank you.